Welcome again to this second video where we will discuss the important questions related to JK Bose, and this is going to be the final video and the second video. Okay, so last time we discussed about the reproduction chapter, which carries the major questions, and now we're going to start the questions from the chapter biotechnology. So we have this chapter biotechnology in our 12th class subject, zoology subject. And what are the important questions? So let me list the questions. So first question is from the biotechnology principles, and it can be about the vector. You can be asked about describe the vector and the related what we call as features. And next you can be asked about a short answer question can become about PCR. And then when we can have about the steps in processing. And then we can have about molecular scissors. We can have a question about molecular scissors, a short answer question. And then two important questions from biotechnology which always come in your board examination is genetically engineered insulin, and second one is gene therapy. So if I rate these questions, I think these two are going to be the most important questions, and these can come as short answer questions. So let us but it can sometimes they can be of 4 marks also. So first of all, let us go into the question vectors. So describe, it can question can have different language. So the question here will be describe vector and its properties. So first of all, what is a vector? So vector is itself a DNA molecule which carries our gene of interest. So our definition will be straightforward. So vector is a DNA molecule which carries our gene of interest. GOI stands for gene of interest. So itself a DNA molecule, and this DNA molecule is also called as gene taxi. It's also called as gene taxi. And there are various vectors available to us. Out of which the examples include plasmids, out of which the example includes cosmids, out of the which examples include phages, bacterial artificial chromosomes, yeast artificial chromosomes. You might all know about these things. तो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का बेस बनने वाला है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर. तो वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है. प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर, तो 3 प्रॉपर्टीज़ होती है. देर आर 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़. वन इज़ द presence of this so-called aurae. Second is the presence of recognition site, and third is the presence of selectable marker. Remember these three things are properties of vector. ये 3 चीज़ें वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ है, ये होना लाजमी है. ऑरे होना चाहिए, रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए और सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए. अब ऑरे क्या है? ऑरे आपसे बेहतर कौन जानता है? ऑरे स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है. एंड ये वेक्टर का वो पॉइंट होता है, वो एरिया होता है जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज अपनी रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है, ठीक है. सो ये वहाँ से क्या होता है? It marks the initiation of DNA replication. यहाँ से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या वेक्टर की रेप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट होती है. एंड और एक ही बारे में एक खास चीज़ है, और एक कंट्रोल्स कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड्स. यानी कि कितने प्लाज्मिड्स एक ऑर्गेनिज्म में एक सेल में रहेंगे, तो वो भी इसी ऑरे पे ही डिपेंड करता है. तो ये 3 चीज़ें पॉइंट्स लिख देना आप ऑरे में. ऑरे स्टैंड्स फॉर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, एंड ये कॉपी नंबर वेक्टर का कंट्रोल करता है. अब रिकॉग्निशन साइट की बात करेंगे. रिकॉग्निशन साइट क्या है? इसको हम रेस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, एंड ये वो साइट है जहाँ पे वेक्टर को कट करेगा कौन सा एंजाइम? हमारा मॉलिकुलर सिजर या रेस्ट्रिक्ट एंडोन्यूक्लियस, एंड वहाँ पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है. रिकॉग्निशन साइट कौन से एरिया है? इज़ द एरिया वायर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस
So it's the area where DNA restriction endonuclease cuts the vector so that we can insert our for the insertion of gene of interest, for insertion ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो और भी हो गया, हमारा रिकॉग्निशन साइड भी हो गया। अब हमारे पास है सिलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर एक जीन है इस वेक्टर में, जिस जीन की हेल्प से हम फिर बाद में आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारा वेक्टर होस्ट सेल में गया है कि नहीं गया है। ठीक है, सो ये एक तरीके का वो हिंट है जो हमें बाद में ट्रांसफॉर्मेट सेल यानी वो सेल जिसमें वेक्टर गया है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो इट्स ए जीन इन वेक्टर विच हेल्प्स us to recognize the transformate hosts यानी कि वो होस्ट सेल्स जिनमें हमारा वेक्टर फिर चला गया होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, ये हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर्स है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर्स है। ठीक है, तो इस चीज़ का, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था वेक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, तो इसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे है दैट इज़ द पीसीआर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है दैट इज़ पीसीआर। तो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब पीसीआर। तो इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे? तो पीसीआर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इट स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जो कि कैरी मुलिस ने डिवाइस की थी। ठीक है, सो इट वाज डिवाइज्ड बाय विच साइंटिस्ट? इट वाज डिवाइज्ड बाय साइंटिस्ट कॉल्ड कैरी मुलिस, and Carey Mullis got Nobel Prize for this technique in 1993. Now, what does this help in? This helps us in replication of the DNA in vitro. In vitro means in lab. ठीक है, सो ये जो टेक्निक है ये आपको DNA को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है, लेकिन कहाँ पे? लैब में। ठीक है, इट हेल्प्स इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में, इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन। तो बहुत ही आसान है। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिवाइस की थी? कैरी मुलिस ने। एंड किस में हेल्प करती है? इन विट्रो DNA रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो हमें प्रिसाइज ही पढ़ना है यहाँ पे, तो हम पीसीआर को अब डिस्क्राइब करेंगे। तो पीसीआर 3 स्टेप्स में होता है। ठीक है, तो पीसीआर कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेप्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 स्टेप्स। ठीक है, तो पहले स्टेप को हम बोलते हैं डिनैचुरेशन। दूसरे स्टेप को हम बोलते हैं अनीलिंग, एंड तीसरे स्टेप को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, बिल्कुल 3 स्टेप्स पे बेस्ड है ये रिएक्शन, एंड उन 3 स्टेप्स में पहला स्टेप है डिनैचुरेशन, अनीलिंग, और तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। तो डिनैचुरेशन में क्या करते हैं? मान लो ये हमारा DNA है, डबल हेलिक्स है। ठीक है, तो डिनैचुरेशन में हम सिंपली इस DNA डबल हेलिक्स को हीट देते हैं। ठीक है, ये डेल्टा से मैं हीट दिखाऊंगा, तो हीट देते हैं इसको ऑलमोस्ट 92 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री सेल्सियस की हीट देंगे, 92 टू 95 डिग्री सेल्सियस। तो 92 ले लेते हैं, 92 डिग्री सेल्सियस की हीट इसको दे देंगे, एंड इस हीट की वजह से क्या होगा? DNA के स्ट्रैंड्स जो है ये सेपरेट हो जाएगी। तो ऐसे DNA डबल हेलिक्स टूट गया एंड ये स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। ठीक है, नाउ इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है अनीलिंग। अनीलिंग में हम क्या करते हैं? अनीलिंग में हम छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं, RNA ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, व्हाट वी कॉल एज प्राइमर्स। ठीक है, जो प्राइमर्स इस DNA के एंड्स पे 3' एंड्स पे बैठ जाते हैं। मान लो ये DNA 5' एंड है, ये 3' एंड है, तो ये 5' होगा, ये 3' होगा। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी मैं बना देता हूँ। ठीक है, नाउ अब ध्यान रखो, तो मैं क्या करूँगा एनीलिंग में? आई विल ऐड द प्राइमर्स, एंड प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे एट द 3' एंड। ठीक है, वो 3' एंड पे ऐड हो जाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा क्यों 3' एंड पे ऐड हो जाते हैं, बिकॉज DNA रेप्लिकेशन सिर्फ 5' टू 3' डायरेक्शन पे प्रोसीड होती है। तो यहाँ पे मेरे सेपरेटेड स्ट्रैंड्स है, दिस आर माई सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। These are my separated strands। तो मैं क्या करूँगा काम? मैं ऐड करूँगा RNA प्राइमर्स। ठीक है, मैं ऐड करूँगा RNA प्राइमर्स। ठीक है, तो RNA प्राइमर्स मैं यहाँ से ग्रीन कलर से बनाऊँगा, तो ये RNA प्राइमर्स 3' एंड पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो डिनैचुरेशन में क्या होता है? देयर इज सेपरेशन ऑफ द स्ट्रैंड्स बाय अप्लाइंग हीट। एनीलिंग में क्या होता है? हम RNA प्राइमर्स ऐड करते हैं जो कि 3' एंड्स पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद और याद रखना, ये जो एनीलिंग है, इट इज़ कैरिड आउट एट ए लोअर टेम्परेचर, ऑलमोस्ट 54 डिग्री सेल्सियस
के अराउंड 52 to 54 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हम टेम्परेचर रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो टेम्परेचर में जो एग्जैक्ट जो कैलिब्रेशन होगी टेम्परेचर की, दैट में वैरी फ्रॉम बुक टू बुक, बट हम यही 50s के अराउंड रखते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, फिर एक्सटेंशन में हम एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज डालते हैं, ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स डालते हैं, इस रेप्लिकेशन प्रोसेस को पूरा करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डीएनए स्ट्रैंड है जिसको प्राइमर भी लग गया है एनीलिंग में, ठीक है। इसको प्राइमर भी लग गया था एनीलिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये 5 डैश है, 3 डैश है, ये 5 डैश है, ये 3 डैश है। तो इन पे प्राइमर्स लग गए थे 3 डैश एंड पे, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अब हम हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेंगे एंड न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो रेप्लिकेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जो कि मैंने डिफरेंट कलर से बनाई है, ठीक है। और हमारे पास एक डीएनए डबल एक्स जिससे हमने स्टार्ट किया था, उससे हमें 2 बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 1 और 2 आ गए और आपने स्टार्ट किया था सिर्फ 1 से, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब करेंगे, मे बी आपको वर्ड्स ना मिले लिखने के लिए। तो डिनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, देयर इज़ व्हाट हैपन्स इन डिनेचुरेशन, देयर इज़ सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स बाय अप्लाइंग हीट, ठीक है। एनीलिंग में क्या करते हैं, देयर इज़ attachment of primers to 3 dash end of each strand, और ये 3 dash end पे बाइंड करके ये डीएनए पॉलीमरेज को स्कैफोल्ड देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं, वहाँ से वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करना स्टार्ट कर देता है। और एक्सटेंशन का टेम्परेचर आप लोग याद रखोगे, एक्सटेंशन ऑलमोस्ट 72 डिग्री सेल्सियस पे होती है। और एक्सटेंशन में हम क्या करते हैं, देयर इज़ एडिशन ऑफ heat stable DNA polymerase along with nucleotide triphosphates which replicate the DNA. Okay. नाउ देयर इज़ वन क्वेश्चन, ये जो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है ये कहाँ से लाते हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आप कहाँ से लाते हो, ठीक है। तो ये मैं नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज आप आर्कीबैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया के उनका एक ग्रुप है जिनको हम बोलते हैं थर्मोफाइलस। तो थर्मोफाइलस से हम एक हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्लासिकल एग्जांपल है टैग पॉलीमरेज, जो हम थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, heat stable DNA polymerase is isolated from Thermophilus aquaticus या थर्मस एक्वाटिकस भी आप बोल सकते हो उसको, थर्मोफिलस एक्वाटिकस या थर्मस एक्वाटिकस और थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। एंड उसको क्या बोलते हैं, दैट हैज़ अ स्पेशल नेम, दैट इज कॉल्ड एज टैग पॉलीमरेज। तो टी का मतलब थर्मस, ए क्यू का मतलब एक्वाटिकस, टैग पॉलीमरेज। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो जब भी आपको पीसीआर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसने डिस्क्राइब किया था, कैरी मूलिस ने डिस्क्राइब किया था, एंड किस में हेल्प करता है, इन विट्रो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, कितने स्टेप्स है, 3 स्टेप्स है, डिनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन, ठीक है। डिनेचुरेशन में क्या करते हैं, स्ट्रैंड्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। एंड एनीलिंग में क्या करते हैं, 3 डैश एंड पे हम प्राइमर्स ऐड करते हैं। एंड एक्सटेंशन में क्या होता है, हम हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज डाल के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स दे के रेप्लिकेशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ का आप ध्यान रखना, आफ्टर n साइकिल्स ऑफ पीसीआर वी ऑब्टेन 2 raised to power n कॉपीज ऑफ डीएनए, 2 raised to power n कॉपीज ऑफ डीएनए। तो 2 क्वेश्चन हमारी होंगे, एक तो पीसीआर और दूसरा वेक्टर, ठीक है। अभी हम जाएंगे तीसरे क्वेश्चन पे, जो कि हमारा है स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो स्टेप्स, तो ऐसे आपको आएगा, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या क्या स्टेप्स आपको करने होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो, जो डायग्राम आपको कॉपी पे होगी। तो मैं ब्रीफली बताऊं तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं हमारे, ठीक है, फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ये हमारी सेल है, जिससे हमारा मान लो कोई जीन इसका हमें पसंद आया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आइसोलेट करेंगे, ठीक है। वो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से आइसोलेट करेंगे। फिर उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर में डालेंगे। तो वेक्टर को हम ऐसे
ये हमने वेक्टर लिया होगा, ठीक है। वेक्टर को हम कट करेंगे, ठीक है, एंड वेक्टर को कट करके हम वेक्टर में इसको फिर फिक्स करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, ठीक है। वेक्टर में फिक्स करने के बाद वेक्टर को हम होस्ट सेल में डालेंगे, ठीक है, एंड देन होस्ट सेल को हम फिर हमें वो सेल सेलेक्ट करनी होगी जो हमारी एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेट सेल होगी। देन उसको हम कल्चर करेंगे एंड उसको लार्ज नंबर इसमें ग्रो करेंगे ताकि अपना प्रोडक्ट हम अचीव कर सकें, ठीक है। बहुत ही आसान है, अगर आपने घर में रिवाइज़ किया होगा तो आप आसानी से इन स्टेप्स को ट्रेस कर पाओगे, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज़ आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और नंबर 2 स्टेप क्या होता है फिर हमारा? नंबर 2 होता है इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, ठीक है, फिर उसको वेक्टर में डालेंगे। नंबर 3 हमारा फिर क्या होता है? वेक्टर को ट्रांसफ़र करेंगे होस्ट सेल में, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ, अच्छा इससे पहले हम एक और स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पे दूसरे स्टेप से पहले, ठीक है, यहाँ हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेप मैं यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में ये इसको मैं तीसरा कहूँगा, दैट इज़ एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। एम्पलीफिकेशन हम पीसीआर से करते हैं, तो एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कर सकते हैं पहले। उसके बाद इंसर्ट करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वेक्टर में, उसके बाद ट्रांसफ़र करेंगे वेक्टर को, ट्रांसफ़र ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल, उसको होस्ट सेल में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे उस होस्ट सेल को, ठीक है, जिसमें हमारा वेक्टर गया होगा, यानी सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट होस्ट सेल, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेट होस्ट सेल, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम उस होस्ट सेल को कल्चर करेंगे, कल्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट, ठीक है। वो हम बायोरिएक्टर्स में करते हैं, आपको याद ही होगा। एंड उसके बाद हम ऑब्टेनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, या ऑब्टेन करेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। बाद में हम प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे हम कल्चर मीडियम से उसको, ठीक है। उसको मार्केटिंग के लिए ले जाएंगे, जिसको डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है, इसको हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आपको ये स्टेप्स याद रह जाए। आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू वेक्टर, ट्रांसफर ऑफ वेक्टर इनटू होस्ट सेल, सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट, कल्चर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेट एंड ऑब्टेनिंग द प्रोडक्ट। बस इतने क्वेश्चन आपको प्रोसेस और बायोटेक्नोलॉजी में से आ सकता है, ठीक है। अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है मॉलिकुलर सीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर मॉलिकुलर सीजर्स, व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा नाम दिया गया है, बट काम में बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो मॉलिकुलर सीजर्स क्या है एक्चुअली? मॉलिकुलर सीजर्स आर एक्चुअली द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो मॉलिकुलर सीजर्स आर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। मॉलिकुलर सीजर जो ये नाम रखा गया है, ये दूसरा नाम है किनका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का, ठीक है। और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो एंजाइम्स है जो डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, और उसको ब्रेक करते हैं, स्ट्रैंड्स को, दोनों स्ट्रैंड्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस, एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको याद आ गया, उन लोकेशंस को क्या कहते हैं? दोज लोकेशंस आर कॉल्ड एज, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? शाबाश, दोज लोकेशंस आर कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन साइट्स या रिकॉग्निशन साइट्स, रेस्ट्रिक्शन साइट्स और रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। एंड एक इंपॉर्टेंट बात है, वो रिकॉग्निशन साइट्स जो होती है दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर, ठीक है। और रिकॉग्निशन साइट्स जो है दे आर पैलिंड्रोमिक इन नेचर। पैलिंड्रोमिक मतलब उनकी रीडिंग सेम आती है अपोजिट स्ट्रैंड्स पे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। पैलिंड्रोमिक इन नेचर, ठीक है, पैलिंड्रोमिक नेचर। फॉर एग्जांपल मैं एक रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस का यहाँ पे एक एंजाइम का एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल EcoR1 एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। इसकी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस क्या है? इसकी रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे है GAATTC, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे हमारे पास GAATTC है, और अगर हमसे बेस पेयरिंग करोगे, बेस पेयरिंग रूल इस्तेमाल करोगे, तो यहाँ से भी आपको GAATTC आएगा। तो आप 5' to 3' देखो, ठीक है, 5' to 3' देखो, तो यहाँ पे आपको सेम रीडिंग आता है GAATTC, GAATTC, ठीक है। इस साइड को हम रेस्ट्रिक्शन साइड बोलते हैं, एंड इस नेचर को जिसमें हमें सेम रीडिंग आती है इन द अपोजिट डायरेक्शंस ऑन डिफरेंट स्ट्रैंड्स, इसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक
नेचर, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आए रेस्ट्रिक्शन मॉलिकुलर सीजर्स क्या होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और ये डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस पे। उन लोकेशंस को रेस्ट्रिक्शन साइट्स बोलते हैं या रिकॉग्निशन साइट्स बोलते हैं, और वो रिकॉग्निशन साइट्स हमारे पैलिंड्रोमिक होते हैं। पैलिंड्रोमिक मतलब उनकी रीडिंग सेम आती है अपोजिट डायरेक्शंस में, ठीक है। और भी हमने बहुत सारा पढ़ा है मॉलिकुलर सीजर्स के बारे में, एक्चुअली न्यूक्लियस के बारे में बहुत सारा पढ़ा है, जो आप यहाँ पे ध्यान रखूँगा। यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगा, ये जो नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन डिस्कवर किया गया, दैट वाज हिंड सेकेंड, ठीक है। और ये आप याद रखना, जो कि नेमिंग होती है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, नेमिंग बहुत ही नेम में एक रूल फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये ECOR1 जो है, ठीक है, ये नाम जो दिया गया है इसमें 5 लेटर्स है। ये जो फर्स्ट लेटर लिया गया है, फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम द बैक्टीरिया, ठीक है, जीनस ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है। तो फर्स्ट लेटर जो यहाँ पे आप देख रहे हो ई, इट इज़ टेकन फ्रॉम, फर्स्ट लेटर इज टेकन फ्रॉम जीनस ऑफ बैक्टीरिया, जीनस ऑफ बैक्टीरिया, जो इस केस में है एस्चर्चिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट 2 लेटर्स जो होते हैं, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो दे आर टेकन फ्रॉम स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, स्पीशीज़ ऑफ बैक्टीरिया, जो इस केस में कोला है। एंड नेक्स्ट लेटर जो है दैट इज़ टेकन फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। एंड देन लास्ट का जो रोमन न्यूमरल होता है वो इंडिकेट करता है ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, दैट इंडिकेट्स ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम दैट बैक्टीरिया, ठीक है। पहले नंबर पे तो फर्स्ट दिया जाएगा, दूसरे नंबर पे आइसोलेट किया गया तो 2 दिया जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बड़ा बन गया यहाँ पे, लेकिन आप इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ये किसी भी फॉर्म में आया तो, ठीक है। मॉलिकुलर सीजर्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। नाउ तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया मॉलिकुलर सीजर्स वाला, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे है लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हमारा जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है और हमारा जीन थेरेपी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बोले यही दो है बोर्ड में, ठीक है। तो इनकी तरफ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा ऐसे, डिस्क्राइब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करोगे इंसुलिन को, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय which cells, produced by beta cells of which gland, very good, of a gland named as pancreas, ठीक है। and what is the function of insulin, insulin brings down your glucose levels after you have eaten sugar rich meal, जब भी आपने बहुत ज़्यादा शुगर रिच मील खाया, कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया, तो ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एलिवेट होने लगता है आपके ब्लड में, तो उस ग्लूकोज को कम करना ये इंसुलिन का काम है, ठीक है। तो इंसुलिन brings down the glucose levels in blood, एक हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ग्लूकोज की लेवल्स को कम कर देता है। और डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन से कौन सी डिजीज़ होती है, सिंपल सबको पता होगा, डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 मोर प्रिसाइजली, या डायबिटीज़ मेलाइटस आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब ये इंसुलिन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा एडल्ट इंसुलिन होता है, मैच्योर इंसुलिन होता है, ठीक है। तो मैच्योर इंसुलिन होता है हमारा, मैच्योर इंसुलिन में हमारे 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये 51 अमाइनो एसिड 2 चेन्स में होते हैं, ये 2 चेन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक को हम ए या अल्फा चेन बोलते हैं, दूसरे को बी या बीटा चेन बोलते हैं, ठीक है। ए में फिर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड बी में फिर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। एंड ये 2 चेन्स हमारे लिंक्ड होते हैं बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। ये ए चेन है, ये बी चेन है, ये ए चेन है, ये बी चेन है, ए शॉर्टर है, और इनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होता है, ठीक है, जो उनको आपस में अटैच करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखना, जो बीटा सेल के अंदर इंसुलिन बनता है वो पहले प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, फिर उस प्रो इंसुलिन की मैचुरेशन के दौरान उससे एक छोटा सा पेप्टाइड निकाला जाता है जिसको सी पेप्टाइड बोलते हैं, आपने सब ये पढ़ा होगा, और सी पेप्टाइड के बाद वो फिर मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम सीधे इंसुलिन का जीन निकालेंगे तो इंसुलिन का जीन सीधे निकालने की वजह से हमारे पास प्रो इंसुलिन आ जाएगा, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन हमारे किसी काम का नहीं होगा, इसलिए बहुत टाइम तक हम इंसुलिन नहीं बना पाए बाय डायरेक्ट आइसोलेशन ऑफ द जीन, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इंसुलिन couldn't be directly produced by culturing of its gene, क्योंकि ये किस फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्रो इंसुलिन फॉर्म या इमेच्योर इंसुलिन फॉर्म, प्रो इंसुलिन फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं इमेच्योर इंसुलिन फॉर्म, ठीक है। तो हमारे पास बाहर लैब में
पोस्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी नहीं होती है, तो इसलिए हम वो प्रो इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रो इंसुलिन कैसा होता है? प्रो इंसुलिन ऐसे एक सिंगल पेप्टाइड होती है, इससे फिर सी पेप्टाइड, छोटी सी पेप्टाइड जिसको हम सी पेप्टाइड बोलते हैं, वो कट की जाती है, एंड बाद में जो दो चेन्स है, ये मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सी पेप्टाइड है, ये कट की जाती है, फिर बाद में दो चेन्स को जोड़ा जाता है बाई डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, बन जाता है हमारा मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। तो बिकॉज अगर हमने जीन निकाला तो हमारे पास ये आ जाएगा और ये किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। और हमें चाहिए कौन सा वाला? ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब बहुत टाइम तक इंसुलिन हम नहीं बना पाए। अल्टीमेटली आपको याद होगा, देयर इज़ अ कंपनी नेम्ड इली लिली एंड कंपनी, ठीक है। तो 1983 में इली लिली एंड कंपनी जो है, इली लिली एंड कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, दे प्रोड्यूस्ड सेपरेट सीक्वेंसेस, उनने अलग अलग सीक्वेंसेस बनाए, तैयार किए फॉर ए एंड बी चेन, ठीक है। उनने ए और बी चेन के अलग अलग डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, उनको अलग से एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस्ड देम सेपरेटली, अलग से इनको ऑब्टेन किया ई कोलाई से फॉर एग्जांपल, ठीक है। एंड देन ज्वाइंड देम बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और बाद में उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया और बनाया फर्स्ट सक्सेसफुल इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, जिसको ह्यूमुलिन नाम दिया गया। दस फर्स्ट सक्सेसफुल ह्यूमन इंसुलिन कॉल्ड एज ह्यूमुलिन वाज प्रोड्यूस्ड, ह्यूमुलिन वाज प्रोड्यूस्ड। बस यही सारे फैक्ट्स आपको मेंशन करने हैं अगर आपको ये सवाल आया, डिस्क्राइब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? इंसुलिन का इंट्रोडक्शन, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, एंड व्हाट इज दिस फंक्शन? ब्रिंग्स डाउन द ग्लूकोज लेवल्स, व्हाट इज it is deficiency resulting in, it is results in a disease called diabetes mellitus type 1। और मैच्योर इंसुलिन में कितने अमाइनो एसिड्स? 51, कितने चेन्स? 2, ठीक है, 21, 30। बट हमारे यहाँ जो इंसुलिन पहले बनता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, ठीक है। अगर हम सीधे जीन निकालें तो हमें प्रो इंसुलिन मिलेगा। तो बहुत टाइम तक इंसुलिन हम नहीं बना पाए इस डायरेक्ट कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी से। तो 83 में इली लिली एंड कंपनी ने एक इनोवेटिव मेथड निकाला। उन्होंने ए और बी चेन के अलग अलग सीक्वेंसेस तैयार किए, अलग से उनको एक्सप्रेस किया, एंड देन उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से ज्वाइन किया और ह्यूमुलिन यानी कि फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बना दिया, ठीक है। सो दैट वाज योर क्वेश्चन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीन थेरेपी, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन होगा, व्हाट इज जीन थेरेपी, या कोई दूसरी लैंग्वेज में भी होगा, डिस्क्राइब जीन थेरेपी, वट एवर, ठीक है। तो जीन थेरेपी बहुत ही एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि देखो आपके बहुत सारे बच्चे जो है दे आर बॉर्न विथ डिफेक्टिव जीन्स या नॉन फंक्शनल जीन्स, एंड जिसकी वजह से उनकी लाइफ कंप्रोमाइज़ हो जाती है, दे में इधर डाई और लिव ए मिजरेबल लाइफ, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू करेक्ट अ जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हाट यू हैव टू डू, द आइडियल ऑप्शन इज़ टू रिप्लेस द जीन, replace the gene with a functional gene, replace the defective gene with a functional gene, and this idea, this concept is what we call as gene therapy, ठीक है। So what is gene therapy? It is replacement, it is simply the replacement of नॉन फंक्शनल, या जिसको आप डिफेक्टिव भी बोल सकते हो, नॉन फंक्शनल या डिफेक्टिव जीन बाय फंक्शनल जीन। तो इन सिंपल टर्म्स इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन फंक्शनल जीन बाय फंक्शनल जीन। ऑल्दो स्कोप तो इसका सारी जेनेटिक डिजीज़ के लिए है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस होती है जिसकी वजह से हम ये परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड जीन थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स कॉस्टली भी होता है। तो अभी भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट ही है, ठीक है। तो जाते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट जीन थेरेपी जो की गई थी, दैट वाज गिवन टू ए 4-year-old गर्ल, ठीक है, इन 1990, ठीक है। अब इसी के अराउंड आपको अपना क्वेश्चन बांध देना है, ठीक है। तो इसको किस डिजीज़ के लिए दिया गया था, ठीक है। व्हाट डिड शी सफ़र फ्रॉम? शी वाज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट वाज दिस गर्ल सफरिंग फ्रॉम? शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज़ कॉल्ड SCID। एंड व्हाट डू यू मीन बाय SCID? SCID इज सीवियर combined immunodeficiency, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। एंड ये डिजीज़ किस जीन की वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू डिफेक्टिव ADA gene, defective ADA gene। And what do you mean by ADA? ADA is adenosine deaminase, adenosine deaminase। तो इनका adenosine deaminase gene खराब होता है। adenosine deaminase gene is very important, this enzyme is very important for the survival of lymphocytes, ठीक है। So this gene is ADA is required for proliferation या division of lymphocytes,
डिवीजन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एंड अगर अब ADA नहीं है तो लिम्फोसाइट्स विल नॉट बी एबल टू proliferate, एंड दिस lymphocytes form our immune system, and thereby this person will lose all its immunity and he will succumb to these minor infections and he may die। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है ना छोटी उम्र में ही मर जाते हैं, बिकॉज ये अपना इनका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, कोई भी इन्फेक्शन इनको मार सकता है। ठीक है, तो दस इट्स लैक या एब्सेंस, ठीक है, क्रिएट्स इम्यूनोडेफिशिएंसी, दैट्स वाई इसको सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, विच कैन लीड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है, अब देखो जीन थेरेपी इनको कैसे दी जा सकती है। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं। ठीक है, देयर आर टू। पहले पहले क्या किया जाता है, पहले एंजाइम इंजेक्शंस दिए जाते थे, या तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो प्रीवियस ट्रीटमेंट्स अगर आपको कभी पूछेंगे या आप मेंशन कर सकते हो अपने क्वेश्चन का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। प्रीवियस ट्रीटमेंट्स इसमें क्या थे, एक तो एंजाइम इंजेक्शंस देते थे, एंजाइम इन्फ्यूजन्स या इंजेक्शंस। ठीक है, एंड दूसरा क्या था, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, बट ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट इतना अवेलेबल नहीं होता एंजाइम इंजेक्शंस की वजह से, की अपनी लिमिटेशंस है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स नहीं थे। ठीक है, तो जीन थेरेपी आप इसको एज ए ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हो। तो जीन थेरेपी इनको दो तरीके से दी जा सकती है। जीन थेरेपी कैन बी गिवन इन 2 ways। ठीक है, तो इफ़ द डिजीज इज डिटेक्टेड इन चाइल्डहुड, अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज, सॉरी, अगर ये डिजीज़ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे डिटेक्ट करी गई, तो आप एम्ब्रियोनिक सेल्स में जीन डालोगे फंक्शनल, तो वो सारी सेल्स में पहुंच जाएगा। ठीक है, दैट वे इट बिकम्स ए परमानेंट क्योर, उस वक्त ये आपका परमानेंट क्योर बन जाएगा। लेकिन अगर डिजीज़ डिटेक्ट हुई इन एडल्ट या जो बॉर्न बेबी है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आप परमानेंट क्योर नहीं दे सकते। ठीक है, उसमें आप सारी सेल्स को पॉसिबल नहीं, आप सारी सेल्स को अपना फंक्शनल जीन दे दोगे। तो उसमें आप क्या करते हो, व्हाट यू डू ए मॉडिफाइड जीन थेरेपी। इसमें हम आप एक मॉडिफाइड या टारगेटेड जीन थेरेपी देते हो। इसमें आप टारगेटेड जीन थेरेपी देखते हो। टारगेट जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले इस पर्सन के कुछ लिम्फोसाइट्स बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो लिम्फोसाइट्स ऑफ दिस पर्सन आर टेकन आउट, तो दे आर टेकन आउट, तो लिम्फोसाइट्स को बाहर निकालते हैं हम। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स में हम रेट्रोवेक्टर्स से एक फंक्शनल जीन डालते हैं। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस ए फंक्शनल ADA जीन यूजिंग रेट्रोवेक्टर्स, एंड वंस इनको फंक्शनल ADA जीन मिल गया, देन री इन्फ्यूज दीज लिम्फोसाइट्स बैक, रीइन्फ्यूज देम बैक, तो उसको फंक्शनल लिम्फोसाइट्स मिल जाती है जो कि प्रोलिफरेट कर पाती है, एंड दैट वे वो बच जाता है। ठीक है, बट क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स दे डाई आफ्टर सम टाइम, ठीक है, दे गेट कंज्यूम। ठीक है, तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। ठीक है, तो पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, periodic infusions are required as these lymphocytes die after some time। ठीक है, दे आफ्टर देयर लाइफ स्पान। ठीक है, जब इनका लाइफ स्पान होता है उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है, तो हमें फिर से यही प्रोसीजर रिपीट करना पड़ता है। सो आइडियल थिंग इज़ कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो तब आप इसको परमानेंट क्योर के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो जीन थेरेपी, अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट विल यू राइट, इट इज़ ए रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉन फंक्शनल जीन बाई फंक्शनल जीन, एंड फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज गिवन टू होम 4-year-old girl 1990। what was she suffering from? SCIDS, severe combined immunodeficiency। What is the defect? The defect is ADA, adenosine deaminase. And what is this ADA required for? The proliferation of lymphocytes. And what happens if it is absent, if it is non-functional, there will be immunodeficiency which can lead to death. And what were the previous treatments available? We can give enzyme injections or we can give bone marrow transplant. And how can we use gene therapy in this disease? We can either, it depends on whether we have detected the disease in embryonic stage or in the adulthood stage. If embryonic stage, we can just fix the gene into the embryonic cells when it becomes a permanent cure. And if we do it in adults, if we detect it in adults, then we cannot provide the permanent cure. We can give a modified or targeted gene therapy where we take out the lymphocytes, give them the gene, and then reinfuse them back. But we may require periodic infusions as the lymphocytes die after some time। Okay, सो बायोटेक्नोलॉजी एज अ चैप्टर हमारा सारा कंप्लीट हो गया, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, तो अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़ अवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो इस चैप्टर में यूजुअली ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इसमें उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है इसका बोर्ड के लिहाज से। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा आइडेंटिफाई करूँ तो एक क्वेश्चन आपको इसमें आ सकता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है इसमें एंटीबॉडीज़ के बारे में।
एंटीबॉडीज़ के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन्स या वैक्सीनेशन के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपको व्हाट वी से आपको आ सकता है क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी कॉल एज सम डिजीज़, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज़ फिलेरियोसिस पूछा जाता है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है अबाउट द मलेरिया, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है अबाउट द HIV, ठीक है। इस डिज़ीज़ के बारे में आपको पूछा जा सकता है। एंड आपको कैंसर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैंसर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये टॉपिक्स आप इसमें हार्ड टॉपिक्स रखोगे, इसके बाहर भी आ सकता है कभी, लेकिन यूजुअली शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही होंगे, ठीक है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट दीज डिस्क्राइब द एंटीबॉडीज़, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आया, ठीक है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आई थिंक इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या है? एंटीबॉडीज़ आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन्स which are produced by the immune system, B lymphocytes, ठीक है, प्लाज्मा सेल्स और B lymphocytes against the pathogens or antigens, ठीक है। So these are glycoproteins produced by the plasma cells or B lymphocytes, produced by plasma cells or B lymphocytes against द पैथोजन, या जिसको हम इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन और पैथोजन में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन आपके लिए ये ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आपके लिए ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो क्या रखा आपने याद? दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स और बी लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट पैथोजन और एंटीजन, ठीक है। नाउ एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो है, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं बाय IgS, ऐसे हम लिखते हैं IgS, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो ये टेट्रापेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर इनका देखें तो आपको पता ही होगा, वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। दे हैव वाई शेप्ड स्ट्रक्चर, वाई शेप्ड अपीयरेंस, ठीक है। एंड दे कंसिस्ट ऑफ 4 पेप्टाइड्स, 4 पेप्टाइड्स होते हैं, जिसमें 2 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं, ठीक है। और फार्मूला हम लिखते हैं, पेप्टाइड फार्मूला जो हम लिखते हैं वो होती है हमारी H2L2, ठीक है। अब हैवी चेन्स आपकी ऐसे होती है और लाइट चेन्स आपकी हैवी चेन्स के साथ भी होती है ऐसे, ठीक है। और हैवी चेन्स के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और लाइट और हैवी चेन के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। सो ऐसा इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये जो हैवी और लाइट चेन्स के एंड्स है, ठीक है, लिम्ब्स है, ये हमारे बनाते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स, ठीक है। और टोटल साइट से 2 होती है, इसलिए हम लिखते हैं वैलेंसी ऑफ द एंटीबॉडी जो है वो 2 होती है। एक ये साइट है और दूसरी ये साइट है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये इनका डेफिनेशन हो गया और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके बाद हम टाइप्स की बात करेंगे। तो टाइप्स मैंने बोला था आपको याद रख सकते हो इस निमानिक से, गेमड से, ठीक है। तो 5 टाइप्स होते हैं हमारे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। एक तो होती है जिसको आप बोलते हो IgG, दूसरा होता है IgA, तीसरा होता है IgM एंड फोर्थ होता है IgE एंड फिफ्थ होता है IgD, ठीक है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा मैं बोल दूं, ऐसे तो इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाएगा। IgG, IgM, IgE, IgD, 5 गामा, ठीक है, अल्फ़ा, म्यू, इप्सिलॉन और डेल्टा, ठीक है। ऐसे आप इनको याद रख सकते हो, गेमड, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन G, ठीक है, ये मोस्ट अबेंडेंट एंटीबॉडी है, मोस्ट अबेंडेंट, ठीक है, सबसे अबेंडेंट है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट होती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि इट क्रॉसेस प्लेसेंटा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, ठीक है। ये अबेंडेंट तो नहीं है, 15% होती है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ टोटल ये बनाती है IgA, ठीक है। इसकी सबसे खास बात है कि इट इज़ प्रेजेंट इन सिक्रीशंस, इट इज़ प्रेजेंट इन सिक्रीशंस लाइक मिल्क, ठीक है, लाइक मिल्क में होती है एंड इट प्रोवाइड स्पेसियो इम्यूनिटी टू द फीटस, ठीक है। एंड IgM जो है ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, इसका ख्याल रखना, ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी है IgM, ठीक है। एंड IgM इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आफ्टर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के बाद ये पहली एंटीबॉडी यही बनती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। और ये पेंटामेरिक होती है,
एक पेंटामेरिक होती है, यानी कि इसमें 5 सब यूनिट्स होते हैं, 5 एंटीबॉडीज़ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, पेंटामर होती है। और IgE जो है ना, IgE और D दोनों बहुत ही कम कंसनट्रेशन होती है। IgE मास सेल्स पे प्रेजेंट होती है, इट्स प्रेजेंट ऑन मास सेल्स, ठीक है, और ये वहाँ के रिसेप्टर्स के तौर पे काम करते हैं। एंड IgD जो होती है, ये प्रेजेंट होती है ऑन बी सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और वहाँ पे रिसेप्टर का काम करती है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में पूछा जाएगा तो IgE का रोल होगा, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये एक ब्रीफ रिवीजन आ जाएगा एंटीबॉडीज़ का, जिसके रिलेटेड आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ जब भी आपको क्वेश्चन आए तो क्या लिखोगे आप? ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स अगेंस्ट पैथोजन। इम्यूनोग्लोबुलिन इनको बोलते हैं, आईजीज से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है, 4 पेप्टाइड्स है, 2 हैवी चेन्स है, 2 लाइट चेन्स है, H2L2 फॉर्मूला है हमारी, वैलेंसी यहाँ पे 2 है, और 5 टाइप्स है, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, और इनके सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बोले। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्मॉलेस्ट ये है और लार्जेस्ट IgM है, और प्लेसेंटा को IgG क्रॉस करती है, मिल्क में IgA होती है, जो कि बाकी सिक्रीशन में पाई जाती है। तो पहला क्वेश्चन एंटीबॉडीज़ था। दूसरा क्वेश्चन है वैक्सीनेशन, ठीक है। तो वैक्सीनेशन एक टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है, इट्स अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी वैक्सीनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, बॉडी को एक्सपोज करते हैं एंटीजन के साथ डिलिबरेटली, ठीक है, ताकि वो उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स क्रिएट करे, एंड वो रिस्पॉन्स हमें फिर अगर कभी रियल में सच में इसको फेस करना पड़ा पैथोजन को, तो अब ऑलरेडी अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी होगी, जिसकी वजह से ये एलिमिनेट कर पाएगा डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को जल्दी से, ठीक है। सो वैक्सीनेशन व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन, ठीक है, सो वैक्सीनेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ वीकनेड फॉर्म ऑफ एंटीजन और पैथोजन into the organism into the organism, so that the immunological memory is provoked, ठीक है। so it is administration of weakened form of pathogen, ठीक है, और एंटीजन इनटू द बॉडी, ठीक है, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। आपको पता है मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं फिर जब भी एंटीजन को देख लेता है इम्यून सिस्टम, और वो फिर आगे सब्सिक्वेंट एक्सपोजर्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो इट फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी? इट फॉर्म्स आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये चीज़ आपको याद होगा, अगर हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में देखें तो ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमारी बनाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपोज तो हम करते हैं, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो है, लेकिन एक्सपोज हम खुद करते हैं, तो इसलिए आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकनेस फॉर्म ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोवोक द इम्यून सिस्टम या क्रिएट द इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है, हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं एज वैक्सीन, ठीक है। तो वैक्सीन केस के लिए क्या क्या, जो वैक्सीन होता है उसमें क्या हो सकता है? ए वैक्सीन में कंटेन, वैक्सीन के अंदर क्या होता है? ए वैक्सीन में कंटेन, ठीक है, क्या क्या हो सकता है वैक्सीन के अंदर? तो वैक्सीन के अंदर सबसे पहले हो सकता है वीकनेड या एटन्यूएटेड पैथोजन, या क्या हो सकता है? किल्ड पैथोजन हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है इसमें टॉक्सॉइड यानी कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन, ठीक है, या तो हो सकता है इसमें सीधे एंटीजेनिक प्रोटीन या एलिमेंट, ठीक है। तो या तो इसमें कोई एपिटोप डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। तो वीकनेड पैथोजन की एग्जांपल है जो ओरल पोलियो वैक्सीन है जो देते हैं, वो ओरल पोलियो वैक्सीन जो ड्रॉप्स डालते हैं वो वीकनेड पैथोजन के एग्जांपल है। इसमें वीकनेड पैथोजन होता है, पोलियो वायरस होता है, वीकनेड पोलियो वायरस, ठीक है। ऐसी IPV आता है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ये किलर पैथोजन की एग्जाम्पल है। टॉक्सॉइड में डिप्थीरिया वैक्सीन आ जाता है, डिप्थीरिया टॉक्सॉइड, ठीक है, या डिप्थीरिया वैक्सीन आ जाता है। एंड एंटीजेनिक प्रोटीन में हेपेटाइटिस B वैक्सीन आ जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस B वैक्सीन का जो है वो एंटीजेनिक प्रोटीन होता है उसमें, जो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वीकनेड फॉर्म ऑफ पैथोजन और एंटीजन इन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रोवोक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है ये। और वैक्सीन के अंदर क्या हो सकता है? वीकनेड पैथोजन लाइक ओरल पोलियो वैक्सीन, किल्ड पैथोजन लाइक इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, टॉक्सॉइड हो सकता है, इनएक्टिव टॉक्सिन लाइक डिप्थीरिया वैक्सीन, और एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है लाइक हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आसान था। अब ये तीसरा क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है फिलारियसिस डिजीज़ के बारे में, तो ये डिज़ीज़ को हम ध्यान रखें। ये 4 डिजीज़ है
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फिलारिएसिस है, ठीक है। तो फिलारिएसिस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन हो सकता है, राइट डिस्क्राइब फिलारिएसिस इन शॉर्ट। फिलारिएसिस, ठीक है। तो फिलारिएसिस एक हेलमिंथिक डिजीज़ है, ठीक है। सो इट्स ए हेलमिंथिक डिजीज़, ठीक है। हेलमिंथिक डिजीज़ एक हेलमिंथिक डिजीज़ है। हेलमिंथ्स कॉज करते हैं इसको, वर्म्स कॉज करते हैं इसको। और कौन कॉज करता है इसको? इट्स कॉज बाय वर्म कॉल्ड एज उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है। इसका नाम ब्रूगिया मलाई भी है, ठीक है। उचरेरिया बैनक्रॉफ्टाई और ब्रूगिया मलाई, ठीक है। आप ध्यान रखोगे इस बात का, ठीक है। नाउ इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होती है? दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर। एंड व्हाट इज दैट वेक्टर? दैट वेक्टर इज क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करता है, ठीक है। एंड इसका जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है इस फिलारिएसिस का, इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है इसका, दैट इज़ वो स्टेज जो ये क्यूलेक्स कैरी करता है उसी को इन्फेक्टिव स्टेज बोलते हैं। दैट इन्फेक्टिव स्टेज इज़ माइक्रोफिलेरिया। माइक्रोफिलेरिया, तो मान लीजिए एक्यूलेक्स मॉस्किटो माइक्रोफिलेरिया इंजेक्ट कर दिया है ब्लड में, ठीक है। वंस ये माइक्रोफिलेरिया ब्लड में आ जाते हैं तो इनकी प्रेफर्ड साइट ऑफ ग्रोथ है लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। तो दीज माइक्रोफिलेरिया, ठीक है, व्हाट डू? दे इन्वेड लिम्फ वेसल्स, ठीक है, एंड ग्रो देयर। ये लिम्फ वेसल में आते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। एंड देन व्हाट हैपन्स? देन ब्लॉक दोज वेसल्स। देन उसके बाद ही उन वेसल्स को ब्लॉक करते हैं। अब जब वेसल्स ब्लॉक हो जाएंगे, ये मान लो ये लिम्फ वेसल है, तो यहाँ पे लिम्फ वेसल ब्लॉक हो गया। यहाँ पे मान लो माइक्रोफिलेरिया ने ग्रो किया है, यहाँ पे ब्लॉक। मान लो ये डायरेक्शन थी, यहाँ पे इस तरह से डायरेक्शन थी लिम्फ के फ्लो होने की। अब लिम्फ नहीं चलेगा, तो लिम्फ नहीं चलेगा तो यहाँ से लिम्फ जमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लिम्फ जब जमा हो जाएगा उस चीज़ को हम बोलते हैं लिम्फ एडिमा, ठीक है। तो जब ब्लॉक हो जाएगा, उस ब्लॉक की वजह से क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग इन एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, व्हाट वी कॉल एज, दैट इज़ कॉल्ड एज लिम्फ एडिमा। उसको हम बोलते हैं लिम्फ एडिमा, ठीक है। तो लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लिम्फ एडिमा, ठीक है। और लिम्फ एडिमा की वजह से जो आपको बाहर से ये पार्ट होगा, द पार्ट विल गेट स्वोलन, ठीक है। तो देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ द पार्ट, ठीक है। अक्सर ये लोअर लिम्ब्स को अफेक्ट करता है क्योंकि लोअर लिम्ब्स को अगेंस्ट ग्रेविटी लिम्फ को कैरी करना पड़ता है, ठीक है। ऑफन इन किन में होता है? ऑफन इन लोअर लिम्ब्स, ठीक है। एंड इतना ज़्यादा लोअर लिम्ब्स कभी कभी स्वेलअप हो जाते हैं कि वो एलिफेंट लेग की तरह दिखने लगता है, ठीक है। एंड इसलिए इस डिजीज़ को एलिफेंटिएसिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो लोअर लिम्ब्स दे मे लुक लाइक एलिफेंट लेग, ठीक है, हैंस कॉल्ड एज। इसलिए इस डिजीज़ को कभी कभी हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। इस डिजीज़ को एलिफेंटिएसिस भी कहा जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट योर फिलारिएसिस। बहुत ही क्रिस्प डिस्कशन हमने यहाँ पे इसके बारे में किया, ठीक है। तो हेलमेंटिक डिजीज़ है, हाइलाइट्स विक्टोरिया बैनक्रॉफ्ट ने कॉज किया है, ब्रूगिया मलाई, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो ये इसको ट्रांसमिट करता है। माइक्रोफिलेरिया ट्रांसमिटिंग स्टेज है, लिम्फ वेसल्स में ग्रो करते हैं, ब्लॉक करते हैं उनको, एंड लिम्फ एडिमा हो जाता है, स्वेल हो जाता है वो सारा पार्ट ऑफन लोअर लिम्ब्स में, ठीक है। एंड एलिफेंटिएसिस को बोलते हैं बिकॉज लोअर लिम्ब्स बराबर एलिफेंट लेग को रिजेंबल करने लगते हैं, ठीक है। तो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे हमें मलेरिया के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और मलेरिया का आपको सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मलेरिया के बारे में अगर बात करें तो मलेरिया आपको पता ही होगा, मलेरिया को कौन कॉज करता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। एंड इस प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज़ है, विवैक्स है, ठीक है, ओवेल है, फैल्सिपैरम है, ठीक है, और मलेरिया है। ये सारे इसके स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। नोवलेसी भी है और एक स्पीशीज़, बट ये चार मेन स्पीशीज़ है, विवैक्स, ओवेल, फ्लैसिपैरम एंड मलेरिया, ठीक है। तो ये चार स्पीशीज़ है प्लाज्मोडियम के जो मलेरिया को कॉज करता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये मलेरिया जो है ये भी वेक्टर डिजीज़ है, तो इसको ट्रांसमिट करता है फीमेल एनोफिलीज़, इसको फीमेल एनोफिलीज़ ट्रांसमिट करता है। एंड जो इन्फेक्टिव स्टेज है, इन्फेक्टिव स्टेज जो यहाँ पे होता है दैट इज़ स्पोरोजॉइट, जिसको ये फीमेल एनोफिलीज़ इंजेक्ट करता है ह्यूमन्स में, दैट इज़ स्पोरोजॉइट, ठीक है। अब लाइफ साइकिल को अगर हम देखें, लो लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है तो मॉस्किटो बाइट करता है किसको? ह्यूमन्स को, ठीक है। तो मॉस्किटो ने ह्यूमन्स को बाइट किया तो उसकी वजह से ये क्या कर देता है काम? ये इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजॉइट, ठीक है। तो स्पोरोजॉइट पहुँचता है लिवर पे, ठीक है।
एंड वहाँ ग्रो करता है, ठीक है, लिवर में पहुँचेगा और वहाँ पे ग्रो करता है किन में, लिवर सेल्स में, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है, और बनाता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं शाइज़ोट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ड्यूजन होता है जिसको शाइज़ोगोनी होती है, जिसके अंदर फिर शाइज़ोगोनी होता है, शाइज़ोगोनी ऑकर्स, जिसकी वजह से बनते हैं नए इंडिविजुअल्स जिनको हम बोलते हैं मेरोजोइट्स, बिल्कुल आपने याद किया होगा। तो मॉस्किटो ने बाइट किया ह्यूमन्स को, स्पोरोजाइट्स अंदर चले गए, लिवर में पहुंचे, लिवर में हेपेटोसाइट्स में ग्रो किया, एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको शाइज़ोट बोलते हैं, उसमें ड्यूजन हुआ, शाइज़ोगोनी बोलते हैं इसको, और उससे मेरोजाइट्स बने। अब मेरोजाइट्स क्या करते हैं, मेरोजाइट्स एंटर RBCs and divide again and produce more and more मेरोजाइट्स, ठीक है, तो इससे और मेरोजाइट्स अगेन शाइज़ोगोनी बनते हैं और मोर एंड मोर मेरोजाइट्स ट्रोफोजाइट्स बनते रहते हैं, ठीक है, मोर मेरोजाइट्स एंड ट्रोफोजाइट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और मोरोजाइट्स और बनते रहते हैं, ठीक है, और इस दौरान ये आरबीसीज के हीमोग्लोबिन को हेमोजाइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन को हेमोजाइन में कन्वर्ट करते हैं इस दौरान, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब कुछ मेरोजाइट्स मॉडिफाई हो जाते हैं इनटू गमीटोसाइट्स, सम फॉर्म गमीटोसाइट्स, तो कुछ इनमें से मेरोजाइट्स गमीटोसाइट्स बना देते हैं। एंड यहाँ पे ज़रूरी है लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए कि मॉस्किटो दोबारा बाइट करे, ठीक है, तो यहाँ पे मॉस्किटो को फिर एक बार बाइट करना पड़ता है अगर लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना है, तो मॉस्किटो बाइट्स अगेन। एंड ये कौन सा मॉस्किटो होगा, ये वो मॉस्किटो होगा जिसको डिजीज़ नहीं है, जो हेल्दी है, ठीक है। अब अगर मॉस्किटो ने दूसरी बार बाइट किया, ठीक है, दूसरे मॉस्किटो ने बाइट किया, इसने थोड़ा सा ब्लड लिया, तो इसने गमीटोसाइट्स अपने साथ लिए, टेक्स गमीटोसाइट्स विद इट, ये गमीटोसाइट्स अपने साथ लेगा, वो गमीटोसाइट्स इसके स्टमक में फ्यूज़ होंगे, तो फ्यूज़ इन स्टमक फॉर्मिंग, वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज वो फॉर्मिंग जाइगोट बनाएंगे पहले, जो फिर oocyst बन जाएगा, ठीक है, विच फॉर्मिंग जाइगोट एंड देन जाइगोट के बाद एंड देन oocyst, जाइगोट के बाद वो oocyst बनाएंगे, ठीक है, फिर उसमें ड्यूजन होगा स्पोरोगोनी ऑकर्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोजाइट्स, फिर से स्पोरोजाइट्स बनेंगे मॉस्किटो के अंदर, एंड स्पोरोजाइट्स दे रीच द सेलेवरी ग्लैंड्स, ये फिर सेलेवरी ग्लैंड्स में पहुंचेंगे, एंड सेलेवरी ग्लैंड्स में पहुंच के ये फिर अगेन रेडी हो जाएंगे ये मॉस्किटो दूसरे ह्यूमन को बाइट करने के लिए एंड इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। आप ज़रा इसको समझो, इस लाइफ साइकिल को। तो मॉस्किटो के पास ऑलरेडी स्पोरोजाइट्स थे, तो उसने ह्यूमन को बाइट किया, उस स्पोरोजाइट्स इंजेक्ट किए, लिवर में वो पहुंचे, वहाँ हेपेटोसाइट्स में ग्रो किया, शाइज़ोट बनाया, शाइज़ोगोनी हुई, मेरोजाइट्स बने, मेरोजाइट्स ने आरबीसीज को अटैक किया, और मेरोजाइट्स बने और ट्रोफोजाइट्स बने, हेमोग्लोबिन कन्वर्ट हो गए हेमोजाइन में, कुछ मेरोजाइट्स ने गेमेटोसाइट्स बनाया, गेमेटोसाइट्स को मॉस्किटो ने फिर से ले लिया, किसी हेल्दी मॉस्किटो ने, गेमेटोसाइट्स फिर उसके स्टमक में फ्यूज़ हो गए, वहाँ जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद oocyst बन गया, और फिर oocyst के अंदर स्पोरोगोनी हो गया, अगेन ड्यूजन हो गया, एंड फिर स्पोरोजाइट्स बने, स्पोरोजाइट्स सेलेवरी ग्लैंड्स में पहुँचे, एंड फिर ऐसे ही मॉस्किटो ने बाइट करना स्टार्ट किया। तो ये लाइफ साइकिल के रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आया, ये आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो ये क्वेश्चन कवर, ठीक है। तो ये मलेरिया के रिलेटेड इतना डिस्कशन काफ़ी होगा, आप एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसमें, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम ये डिजीज़ कॉज करता है जिसका वेक्टर फीमेल एनोफिलीज है, और इतनी सारी स्पीशीज़ है, विवैक्स बहुत ही कॉमन स्पीशीज़ है, लेकिन सबसे डेंजरस स्पीशीज़ फैल्सीपैरम है, ठीक है, इस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा HIV एड्स, ठीक है, HIV, ठीक है, तो HIV एड्स, ठीक है, तो एक्चुअली डिजीज़ जो है डिजीज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, और यही डिजीज़ कॉज होती है बाय HIV, दिस इज़ कॉज्ड बाय HIV, ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय HIV? HIV मीन्स ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इस वायरस को पहले USA में डिस्कवर किया गया था 1981 में, पहला केस इसका होमोसेक्सुअल्स में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। सो इट वाज डिस्कवर्ड इन 1981 एमंग होमोसेक्सुअल्स ऑफ USA, तो USA के होमोसेक्सुअल्स में डिस्कवर किया गया, होमोसेक्सुअल मेल्स में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एड्स HIV वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे, HIV स्ट्रक्चर यहाँ पे जो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। तो इस HIV के अंदर अगर आप देखोगे, इस HIV के अंदर दो
कॉपीज़ होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के, ठीक है, जिसके अराउंड आपका एक कैप्सिड होता है, प्रोटीनेशियस कैप्सिड होता है, ठीक है। 2 लेयर्स होते कैप्सिड के, 2 लेयर्स होते कैप्सिड के, ठीक है। एंड उसके बाद फिर बाहर से एक एनवलप होता है, एक लाइपोप्रोटीनेशियस या लिपिड का बना हुआ एनवलप होता है, ठीक है। और उस एनवलप में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। उस एनवलप में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। उस एनवलप में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है। उस एनवलप में बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो व्हाट इज दिस दीज आर what are these are 2 copies of single strand RNA. What is this is capsid. And what is this yellow color, this is envelope. And what are these are spikes, ठीक है। तो ये लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या मिलता है हमें, स्ट्रक्चर में क्या आपको मिलता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कंसिस्ट्स ऑफ, ठीक है, नंबर 1 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। नंबर 2 डबल लेयर्ड प्रोटीन कैप्सिड, जिसमें इनर P17 प्रोटीन्स होते हैं और आउटर P24 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। नंबर 3 आपको मिलता है फिर आउटर मोस्ट लाइपोप्रोटीनेशियस एनवलप, ठीक है, विद स्पाइक्स, ठीक है। एंड स्पाइक्स GP120 प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, GP120 प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये इसका HIV का स्ट्रक्चर है, इससे आप अपना क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो वायरस है ये हमारे CD4 पॉजिटिव सेल्स को अटैक करता है, ठीक है। तो दिस वायरस अटैक्स CD4 पॉजिटिव सेल्स, दिस वायरस अटैक्स CD4 पॉजिटिव सेल्स। वो CD4 पॉजिटिव सेल्स क्या है, जिन पे CD4 प्रोटीन होता है, क्लस्टर डिफरेंशिएशन 4 प्रोटीन होता है, ठीक है। लाइक इसमें क्या आता है, इसमें मैक्रोफेज आते हैं इन CD4 पॉजिटिव सेल्स में, इनमें T हेल्पर सेल्स आते हैं, इनमें T हेल्पर सेल्स आते हैं, ठीक है। और इस वायरस का बिल्कुल बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का, ठीक है। मान लो ये मैक्रोफेज है, ठीक है, तो ये यहाँ से वायरस आ रहा है, ठीक है, वायरस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेगा, ये इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका जो RNA है वो अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये मान लो ये पहले अटैच हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद इसका RNA अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये फ्यूज़ हो जाएगा इसके बाद। तो फ्यूज़ होने के बाद इसका RNA अंदर चला जाएगा, ये मान लो ये इसका RNA था, तो इसका RNA अंदर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके RNA से DNA बनेगा, इसके RNA से DNA बन जाएगा, ठीक है। फिर वो DNA मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। फिर वो RNA मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, फिर वो DNA मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा, फिर वो DNA मेन जीनोम के साथ अटैच हो जाएगा। फिर नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, फिर नए वायरस पार्टिकल्स बनेंगे, ठीक है। और फिर ये सेल बर्स्ट हो जाएगी और उन पार्टिकल्स को रिलीज़ करेगी, ठीक है। तो सुपरफिशियली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम आपको बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत डायग्राम आपको बुक पे मिल जाएगी, ठीक है। आप ये स्टेप्स को फिलहाल में समझो, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ attachment of the virus to the cell, second step is fusion of the virus with the cell, and then introduction of its RNA, then उसके बाद conversion of the RNA into DNA, double strand DNA, then इसके बाद then integration of the DNA with the host cell DNA, and fourth production of the new viral particles, and then release of these viral particles. तो हमारे बहुत सारे steps है। number first step is attachment of virus with cell, नंबर 2 फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन्स, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन्स फ्यूज़ होंगे, ठीक है। नंबर 3 एंट्री ऑफ SSRNA, इसका सिंगल स्ट्रैंड RNA एंटर हो जाएगा उस सेल में, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ SSRNA इनटू dsDNA,
dsDNA, जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, व्हाट वी कॉल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ DNA विथ dsDNA विथ होस्ट DNA, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स, एंड उसके बाद अल्टीमेटली रिलीज ऑफ न्यू वायरल पार्टिकल्स जो बाकी सेल्स को अटैक करेंगे, न्यू वायरल पार्टिकल्स, ठीक है। और ऐसे चलता जाता है जब तक ये सारी CD4 पॉजिटिव सेल्स को ख़त्म नहीं कर देता और पर्सन को इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखना, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं, इनको आप ध्यान से रिमेमोराइज कर देना, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ अबाउट द कैंसर, ठीक है। तो HIV को तो पहले रिवाइज करते हैं। तो HIV मैंने आपको क्या बोला, एड्स एक्चुअली में डिजीज़ है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और इसी को ये HIV कॉज करते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। पहला केस 1981 में होमोसेक्सुअल्स ऑफ USA में डिस्कवर किया गया। उस स्ट्रक्चर में आपको 2 कॉपीज़ मिलते हैं SSRNA के, डबल लेयर मिलता है प्रोटीन्स का जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और आउटर मेस्ट एनवलप मिलता है जो लिपिड्स का बना हुआ होता है, ठीक है। और वायरस CD4 पॉजिटिव सेल्स को अटैक करता है, लाइक मैक्रोफेज एंटी हेल्पर सेल, जिनके काउंट को ही कम कर देता है। और वो स्टेप्स सारे हमने यहाँ पे देख लिए। पहले वायरस अटैच हो जाएगा, फिर फ्यूज़ हो जाएगा, फिर इसका RNA अंदर जाएगा, फिर वो DNA में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका DNA जुड़ जाएगा होस्ट के DNA के साथ, फिर उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करेगा, नए वायरल पार्टिकल्स बनाएगा, एंड देन वो नए वायरल पार्टिकल्स रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एड्स, HIV एड्स है। तो कैंसर जो डिजीज़ है वो आपको, मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली दैट विल नॉट कम एज ए क्वेश्चन। थोड़ा सा डेफिनेशन ऑफ कैंसर आपको पूछा जा सकता है, जो कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स है, ठीक है, जो आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हमारा अपने यहाँ पे जाएंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन, ठीक है। तो एवोल्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दोज क्वेश्चंस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को प्रिपेयर करो। तो एवोल्यूशन और जो ह्यूमन जेनेटिक्स है, ठीक है, इसका हम 3rd वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो कि शॉर्ट वीडियो ही होगा, ठीक है, विच विल बी वेरी शॉर्ट, उसमें हम वो सारा चीज़ एड्रेस कर देंगे, ठीक है। और हम इस बोर्ड प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से कर देंगे, और ताकि जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हो उसमें आपको बहुत ही आसानी हो जाए अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे, ठीक है। सो ऑल माय रिक्वेस्ट इज़ कि अब जिसने ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा वो इन्हीं वीडियोस को 2-4 बार देखे, 5 बार देखे, सो ये आइडिया उसके दिमाग में फंस जाए, ठीक है। एंड वो इन वीडियोज़ को रिकॉल करके वहाँ पर अपना क्वेश्चन जो है अच्छे से कर सकता है, अपने बोर्ड पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।